Good morning, dear student. Today I am present with another new chapter. So you're welcome back in this online class of English, class 8th. So now, dear student, be attentive and look at this slide. By looking this slide, what comes into your mind? आप जब इस स्लाइड को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आखिर ये कौन सा चैप्टर है हम लोग जिसे आज डिस्कस करने वाले हैं? So by looking into first picture, you can see that there are so many revolutionary people. They are fighting with each other. So what is showing? This is the representations of 1857. इसके बारे में आपने सुना होगा 1857 की क्रांति. So this picture is showing that there is something fighting running for something. And by looking here in second chapter, second slide, second picture, you can see there are so many martyrs have been laid down on the ground, and some British people are also enjoying the victory by killing them. And our third one, there are so many people riding on the back of the horse. तो यहाँ पे तीनों पिक्चर्स देखने से हमें पता चलता है कि ये जो तीनों पिक्चर्स हैं वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसा कि 1857 की क्रांति के बारे में है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा की गई है, और कुछ जो आंदोलन थे उनके बारे में यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है. तो प्यारे बच्चों, टुडे आवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हनीड्यू, द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. Glimpses of the past. So first of all we will discuss about the title. Actually, what does it mean by glimpses of the past? Glimpses of the past. So here glimpses means memories, यादें जिसे आप झलक कर सकते हैं, memories related about the past. So even though today we are living in free India, so we have not the value of, we does not really have the meaning of freedom. We always underestimate the martyrdom of the brave people, freedom fighters who sacrificed their life for this motherland, mother country, India. But we don't have the real taste of the freedom, because whenever we do not experience it themselves, then we could not get the real aesthetic feelings of freedom. So here, by discussing this chapter, we are going to unveil some history, how they sacrificed their whole and soul for this freedom of Mother India, and how they have been suppressed and dominated by the British people, how much cruelty they have committed on our people. So this is our topic, glimpses of the past. बीते हुए जो समय है, बीता हुआ जो समय है, हमारे संघर्षों का समय था, जो आज़ादी का समय था, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे देशभक्तों ने अपने प्राणों की बलि देकर हमारे देश को आज़ाद कराया, जिसकी वैल्यू आज हमें उतनी समझ नहीं आती है. वी ऑलवेज फील दैट वी आर फ्री, एंड वी आर डे बाय डे फॉरगेटिंग देम. सो वी शुड नॉट फॉरगेट देम, बिकॉज दे आर द रियल हीरो ऑफ आवर कंट्री. So here, this is the first slide, the martyr. You know martyrs, शहीद, जिसे शहीद कहा जाता है हिंदी में. And there is some quotations mentioned here. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's martyr. कहा जाता है मेरे देशवासियों, अपने आँखों में कम से कम उन शहीदों के लिए आंसू तो ला लो, अपने आँखों में आंसू भर लो जब आप
उन्हें याद करेंगे, उनके बलिदान को सोचेंगे, उनके बलिदान को जब उनका आकलन करेंगे तो आपके आंखों में आंसू यूं ही आ जाएंगे। देशवासियों, डियर कंट्रीमैन, you should not forget them and we should not forget their sacrifice they have committed for our country. So here there are two pictures given. You can guess very easily who are these martyrs. There are so many martyrs who sacrificed their life, just like Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sarojini Naidu, Lakshmibai, Tatya Tope, etc. So let us discuss how the British people set up their companies in India. What was the process, how they begin to dominate in India, how they make our country slave and country people slave. कैसे उन्होंने अपने देशवासियों को, हमारे देश के ऊपर उन्होंने कैसे राज स्थापित किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे. And this was the during 18th century, British East India Company was extending its power in worldwide. तो 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने पूरे पावर को पूरे दुनिया में फैला रही थी और उसी का एक हिस्सा इंडिया भी था. दैट टाइम इंडियन प्रिंसेस वर फाइटिंग ईच विथ ईच अदर. उस समय हमारे देश में अनेक राजा महाराजा हुआ करते थे, बट दे वर डाइवर्स एट डिफरेंट लेवल एंड दे ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर फॉर फॉरफिटिंग देयर लैंड्स. और हर एक दूसरे को गुलाम बनाने के लिए, उनकी आज़ादी को छीनने के लिए, उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे. एंड एट दैट टाइम इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन बर्ड बिकॉज इंडियन प्रिंसेस एंड किंग एंड क्वींस वर वेरी रिच. दे हैव so many jewelries at that moment. So East India Company subdued Indian princes one by one, and by following the strategies, East India Company decided to subdue all the princes, and finally they got success by deceiving each other, by provoking each princess, king and queen against another, and in this way they got success. So who first of all came here? So British East India Company came here in India first of all to set up their colonies. So by looking at this picture you can see this is the India. So British India, places visited by Rudyard Kipling. So these are the places visited by Rudyard Kipling, the famous writer. So here three colors have been mentioned. So British colors, Privacy States and other countries. So British rule in India from 1765 to 1836. So in this slide we are going to read how British people got success to suppress Indian queen, Indian king and princes. So religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. The British imposed heavy taxes on the farmer so that farmers had to abandon their fields. तो इस समय भारत में छुआछूत बहुत ही प्रचलित थी और चाइल्ड मैरिज हुआ करता था. कम उम्र में लोगों की शादियां कर दी जाती थी और इस फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने इस विध्वंसक छुआछूत जैसी परंपरा से हमें निजात दिलाया.
And at that time, British imposed heavy taxes on farmers so that farmers had to abandon their field. और उस समय भारत में नील खेती की जाती थी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैक्स किसानों पे लगा दिया, जिसके कारण किसानों को मजबूरी में अपने खेती का काम छोड़ना पड़ा. इन दिस वे द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्री. और इस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक छत्र राज पूरे इंडस्ट्री पे फैला लिया. एंड दे वर एबल टू सेट अप सो मेनी कॉलोनीज होल अराउंड द इंडिया. ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम प्रॉफिट. और उनका दूसरा भी तरीका था जिससे उन्हें ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा, वो अमीर होते गए. इनएविटेबल फेमिनाइंस. और यहाँ पे फेमाइंस आई थी, जो अकाल महामारियाँ होती हैं वो फैली थी 1822 में 1836 के बीच. 15 lakhs इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. और आप समझ सकते हैं बिटवीन 1822 एंड 1836 15 lakhs इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. और भूख के कारण जो है उस महामारी में, उस अकाल में 1822 और 1836 के बीच 15 लाख भारतीयों की मौत हुई थी भूख से. लेकिन आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, उस समय नहीं था. So here there is another slide given about Raja Ram Mohan Roy, as I discussed earlier about him. So who was Raja Ram Mohan Roy? Let us see. So Ram Mohan Roy, a learned person from Bengal, understood what was wrong with his country. और राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में कहा जाता है बहुत बड़े विद्वान थे, and he was from Bengal, and he understood the reality of Indian society and culture, and he thought that what is wrong with Indian society and this country. उन्हें पता था कि भारत के साथ क्या गलत है. What is the reason behind their slavery. Then he was attracted by science and modern knowledge because he was very brilliant scholar. He believed in science and modern knowledge. That's why he wanted to remove blind faith belief from mythology in which all Indians people believe. And this was the cause of child marriage, corruption and discrimination. और यही कारण था, अंधविश्वास ही था जिसके कारण जो है भारत में बेरोजगारी, अशिक्षा के कारण लोग जो है बाल विवाह जैसी कुप्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथा से ग्रसित थे. सो इन दिस वे ही डिसाइडेड व्हाट टू डू, हाउ टू रिफॉर्म द पीपल ऑफ इंडिया. ही वांटेड टू अवेकन द पीपल ऑफ इंडिया. और भारत के हर एक नागरिक को जागरूक करना चाहते थे ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, क्योंकि अभी वह अंधकार में जी रहे थे. वह कुप्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे बिल्कुल जघन्य कह सकते हैं कृतियों में संलिप्त थे. ही वेंट टू इंग्लैंड एंड फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ इंडिया. और वह इंग्लैंड गए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की और भारत के न्याय के लिए वह आवाज़ उठाने लगे. ही सेड टू हिज वाइफ. और एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. हमारी जो गाय होती हैं, यद्यपि कि वह अपनी पत्नी से बोले कि जो गाय होती है उनका कलर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जब उनके दूध की बात आती है, मिल्क की बात आती है, तो विभिन्न प्रकार की गाय होने के कारण भी उनका जो दूध होता है वह सफ़ेद होता है. सो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. उन्होंने कहा हर एक धर्म के मानने वालों लोगों का विचार, ओपिनियंस अलग होता है, लेकिन उनका जो इसेंस होता है, उनका जो मूल होता है, धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह सबका सेम होता है. द रिलीजन, द एक्शन ऑफ द रिलीजन टू रिफॉर्म द पीपल एंड टू ब्रिंग देम फ्रॉम स्टारवेशन, टू ब्रिंग देम फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस. तो हर धर्म का जो उद्देश्य होता है वह सिर्फ अंधकार से प्रकाश की तरह ले जाना है लोगों को. तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा और इस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने हमारे देश से कई कुप्रथाओं का उन्मूलन किया, समापन किया.
So let us see the operation of 1765 and 1835. इस दौरान भारत के ऊपर कितने अत्याचार किए गए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. So here this is the picture of Lord William Bentinck. But the British continued to oppress India. लेकिन इतने सुधार होने के बाद भी, इतनी जागरूकता फैलने के बाद भी जो ब्रिटिश का अत्याचार था वो बढ़ता गया. In 1818 they had passed regulation third under it an Indian could be jailed without trial in a court. और इसके बाद कहा गया बिना वकील बिना दलील के किसी भी इंडियन को जेल में रखा जा सकता है, उसे जेल की सज़ा दी जा सकती है. लेकिन आज नहीं है. अगर किसी को जेल की सज़ा होनी है तो उसके ऊपर पहले कोर्ट में दलीलें होती हैं, मुकदमा चलता है. लेकिन उन्होंने ऐसा कानून पारित कर दिया 1818 में कि बिना किसी वकील और दलील के किसी को भी जेल में ठूंसा जा सकता था. सो दिस वाज द ऑपरेशन बाय द क्रूएल ब्रिटिश अपॉन इंडियन. By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया. और इस तरह से ब्रिटेन जो है एक्सपोर्ट करता था जो सामान, उसकी कीमत 7 करोड़ रुपीस थी. All the times British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. In this way India became a hub for them, source of income for them. So every British wanted to come here and to get some high salaries. In this way they became very rich and rich day after day. So in this way they began to rob India. They began to shift money to their country from India. At that time Bentinck was the Governor General of India, and at that time William Bentinck was the Governor of India. So these are the past history of India which every Indian faced during this operation by the Britishers. So dissatisfaction came in 1835 and 1856. डिससेटिस्फेक्शन होने लगा इंडिया में. क्यों होने लगा? एडुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. उस समय जो है जो भारत का जो मुख्य माध्यम था शिक्षा का वह संस्कृत और पर्शियन हुआ करता था. एंड ड्यूरिंग 1835 एंड 56 थॉमस मैकाले सजेस्टेड सम चेंज इन इंडियन एजुकेशन. और लॉर्ड मैकाले जो कि जब इंडिया आया तो उन्होंने यहाँ के शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन किया. उन्होंने कुछ ड्राफ्ट रिलीज किए, हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन इन 1835. उनका ड्राफ्ट जो आया था 1835 में आया था. एंड दे टॉट इंडियंस देयर लैंग्वेज. इन दिस वे दे बिगिन टू टॉट every Indian the language of Britishers. So in this way they adopted and strategies to make Indian proficient in their language so that they can make them slave and they can also get some good work from the Indians. That's why they begin to taught English to Indians, and they set up so many institutions for teaching of British language. So by 56 the British had conquered the world of India. और इस तरह से लॉर्ड मैकाले के आने के बाद उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि भारत के कुछ हिस्से को, जो अमीर वर्ग है, उसे इंग्लिश पढ़ाया जाए ताकि जब वो इंग्लिश पढ़ लेंगे तो हमारी वो मदद कर सकते, हमारे कंपनीज में, हमारे फील्ड में वह काम करेंगे और हमारे गुलाम बनकर काम करेंगे. और इस तरह से पूरे इंडिया को गुलाम बनाना आसान हो जाएगा. और 1856 में इसी के परिणाम स्वरूप पूरे इंडिया पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है पूरे ब्रिटेन का कब्जा हो गया. दे केयर्ड अ लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन. इन दिस वे दे बिगन टू शो सम नेग्लिजेंस अबाउट द इंडियन पीपल. दे बिगन टू misbehave with Indians. They never cares about the needs and demands of the Indian people because they thought that we are the whole and soul of this whole country. They became the master, they became the lord of this whole country,
and all the Indian people who were very poor one, they became slaves in the hand of British people. So after this inhuman method applied by the Britishers over Indians, there became the sparks in 1855 and 1857. और इस दास्ता की गुलामी से निजात पाने के लिए कुछ पुनर्जागरण काल हुआ इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में, और वह पहला विद्रोह था, वह पहला व्यक्ति था जिसने इस अमानवीय दास्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई. सो लेट अस बी सी who was that person. So dear student, this is the picture of someone here, Mangal Pandey. Do you know Mangal Pandey? सभी लोग परिचित होंगे कि वह पहले बलिदानी थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी. So let us be discuss about this spark which came in 1855 and 1857. तो इस स्पार्क के बारे में बात करें, क्या बदलाव हुआ हमारे समाज में. So some Indian soldiers in East India Company were ill pleased with the attitude of East India Company. तो धीरे धीरे हमारे जो सैनिक हुआ करते थे, जो सिपाही होते थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करते थे, उनके अंदर असंतोष फैल गया. वह कंपनी के व्यवहार से, उनके नियम कायदे कानून से खुश नहीं थे, और इसी के परिणाम स्वरूप वह जो है आवाज़ उठाने लगे. एंड सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे अटैक द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड एक्सिक्यूटेड. और उसी असंतोष के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे नाम के एक वीर सपूत थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, और उसके ईस्ट इंडिया अपने थाने के जो मेन था, जो हेड था, उसकी उन्होंने हत्या कर दी. और इसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे विद्रोह फैल गया, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है, नाम दिया गया है. और ही वॉज ऑल्सो स्टफ्ड इन टू जेल एंड फाइनली ही वॉज सेंटेंस टू डेथ. तो हमारी आज़ादी का यह पहला स्पार्क था 1855 से 1857 के बीच, जो मंगल पांडे के द्वारा उठाया गया. And in 1857 there was revolt came in Indian history. और 1857 की क्रांति, जो कि भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1857 में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई. In 1857 a violent revolt was outbroken in मेरठ. और उसी समय मंगल पांडे की हत्या के बाद, विद्रोह के बाद, मेरठ में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह भड़क उठा. द रिवेलियंस स्प्रेड वाइड है, और इस तरह से जो रिवेलियन थे पूरे इंडिया में, उनका विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया. मैनी लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ देयर ब्रिटिश पॉलिसीज. और अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, और उनके नियम से ढेर सारे ऐसे लैंडलॉर्ड थे जिन्हें अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ गंवाना पड़ा ब्रिटिश पॉलिसी के तहत. So in 1857 there was fight for the freedom and so many martyrs have lost their life. So in this slide we are going to discuss about the great Indian who have lost their lives for Indian freedom and for well-being of the Indian people. So first name Tantya Tope. So many rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were better. तो बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से, उन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया. एंड द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. तो यहाँ पे बेगम हजरत महल ने भी, तांत्या टोपे ने भी, सभी लोगों ने उस क्रांति में, उस रिवोल्ट में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें चढ़ बढ़कर जो है हिस्सेदारी निभाई और अपने प्राणों की बलि दी. सो डियर स्टूडेंट, so these are the things we have discussed, but there are so many uncountable martyrs are also who are unnamed. They sacrificed their life only for Indian society, Indian freedom, but even their name is not also mentioned, are not also mentioned in history
but we should not forget them. We should always remember them, and we have समथिंग फीलिंग्स टू फॉर देम इनटू आवर कोर ऑफ द हार्ट. हमारे दिल में उनके लिए जगह होनी चाहिए. इस चैप्टर में हमने इतना कवर किया, लेकिन बहुत से ऐसे शहीद थे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अनकाउंटेबल जिसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और ये सभी लोग हमारे देश के शहीद थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को आज़ाद किया. तो मेरे इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद यह है कि आपके दिल में भी उनके लिए प्रेम होना चाहिए. उनकी यादों को हमें भुलाना नहीं चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को संजोया है. सो आई होप you will also do so, and you must have respect for them, and for that I would like to say thank you for watching this video.